کچھ سوشل میڈیا کے ایسے گندے کیڑے ہیں کہ جو میرے شوہر کو بھی بھڑکاتے رہے اور مجھے بھی بھڑکاتے رہے. کچھ اسکرین شاٹس ہیں، یہ میرے ساتھ جو ہے وہ بات چیت چل رہی ہے اور یہ انہوں نے اس کے اسکرین شاٹس بھی مجھے بھیجے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک ویڈیو حارث کی اے آئی سے بنا کے جنریٹ کر کے مجھے بھیجی گئی کہ اس نے میری ساس کے کان بھر بھر کے میری ساس کو میرا دشمن بنا دیا تھا. میرے شوہر کے ساتھ بیٹھ کے ایک پلیٹ میں کھانے والے وہ ہیں جنہوں نے اپنے گھر بسائے ہوئے ہیں، جن کی دو بیٹیاں ہیں، انہیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. یہ ڈرامہ تھا، یہ ڈرامہ نہیں تھا. میری زندگی جو ہے وہ بھنور میں پھنسی ہوئی تھی، میں تکلیف اور اذیت میں ہوں. جی اس وقت ڈاکٹر نبیہہ میرے ساتھ موجود ہیں، آفس میں ہماری پوری وکلا کی ٹیم موجود ہے اور مجھے انسٹرکشن دے دی گئی ہیں میرے کلائنٹ کی طرف سے کہ وہ خلا واپس لے رہی ہیں. ہم خلا واپس لے رہے ہیں اور خلا واپس لینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اب عدالت سے کسی قسم کی کوئی ڈیورس نہیں چاہ رہے. اس بابت ڈاکٹر صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں، کچھ چیزیں ہیں وہ آن ریکارڈ آپ کے سامنے لے کے آئیں گے. اس کے علاوہ میری چونکہ اس خلا کے ساتھ ساتھ ہر خلا کے کیسز میں وکلا کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ صلح کی طرف جائیں، تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کیس تھا. تو یہ بڑی اچھی مجھے آج صبح گڈ نیوز مل گئی کہ ڈاکٹر نبیہہ صاحبہ کی بھی صلح ہو رہی ہے اور ایک اور لڑکی تھی مریم نامی اسلامت پورہ کے رہنے والی، اس نے بھی میسج کر دیا کہ ڈائریکٹ میرا رابطہ ہو گیا ہے ہسبینڈ سے، تو میں بھی جو ہے نا وہ صلح کرنا چاہ رہی ہوں. تو یہ دو خلا جو ہم وڈرا کرنے جا رہے ہیں اس میں مین تو یہ ہے کہ دو تین چیزیں جو میں نے اس میں آبزرو کی، فیملی کورٹ کے کافی سارے کیسز کیے، اس میں خلا کی ریزنز اور خلا کو ہم روک کیسے سکتے ہیں. اس میں میری حارث پھوکڑ صاحب سے بھی بات ہوئی، ان کی فیملی کے ساتھ بھی بات ہوئی، میں 2-3 بار ان کے گھر بھی گیا، ڈاکٹر صاحب کے گھر بھی گیا. صرف یہ کیس نہیں، ہر خلا کے کیسز میں کوشش ہوتی ہے کہ کمپرومائز ہو جائے، گھر بسنا چاہیے. یہ بہت بڑا نیکی کا کام ہے، اس میں تو جھوٹ سختی سے منع ہے، لیکن یہ ایک ایسا کام ہے جس میں ہمیں اسلام اس چیز کی بھی دعوت دیتا ہے. پاکستانی قوم بہت اچھی ہے، بہت محبت دینے والی ہے، بہت پازیٹیو ہے. باقی میری کلائنٹ ڈاکٹر نبیہہ اس وقت موجود ہیں، وہ مزید اس بارے میں آپ کو بریف کر دیں گی. مدثر بھائی، پہلے تو آپ کا بہت شکریہ. آپ نے جب میں خلا دائر کرنے لگی تھی تو آپ نے مجھے بارہا اس چیز کے بارے میں بار بار کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ سوچ سمجھ کے یہ سٹیپ لیں، آپ کے گھر کا مسئلہ ہے، گھر ایک دفعہ ٹوٹ جائے تو انسان اسے دوبارہ نہیں جوڑ سکتا. اور آپ نے اتنی شاندار طریقے سے شادی کی اور یہ سب چیزیں آپ جو مجھے سمجھاتے رہے. اور میں نے سب سے بڑی بات جو آپ نے یہ دیکھی کہ کوئی بھی وکیل جو ایک کلائنٹ کا ہو وہ دوسرے کلائنٹ سے جا کے نہیں ملتا، لیکن آپ نے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر حارث سے بھی ملاقاتیں کی، اس کے گھر والوں سے بھی ملاقاتیں کی اور انہیں بھی سمجھانے کی کوشش کی کہ اس رشتے کو جڑنا چاہیے، ٹوٹنا نہیں چاہیے. جو چیزیں ہو رہی ہیں، دیکھیں میں بہت زیادہ تکلیف میں اور اذیت کے اس مقام پر پہنچ گئی تھی تو میں یہاں تک پہنچی. ہمارے بیچ میں تھرڈ پارٹی سچویشن بہت زیادہ ہے. کچھ سوشل میڈیا کے ایسے گندے کیڑے ہیں کہ جو میرے شوہر کو بھی بھڑکاتے رہے اور مجھے بھی بھڑکاتے رہے. جو خود سے میں نے چیزیں دیکھی وہ وہی ہیں جہاں پر میں نے جن کا جو ہے وہ میں نے جو کہا ہے وہ وہی ہیں، لیکن جو بیچ میں انٹرفیرنس تھا لوگوں کا وہ بہت زیادہ تھا. ان کے والدین نے بھی آپ کو یقین دہانی دلوائی کہ ہم ان کو جو ہے وہ باقاعدہ بہو کے روپ میں جو ہے وہ قبول کریں گے، اور جو ہے وہ میں بھی ان کو باقاعدہ اپنے ماں باپ کے روپ میں جو ہے قبول کروں گی. لیکن سوشل میڈیا پہ ہونے والے جو منفی باتیں ہیں کہ ڈاکٹر نبیہہ نے ویوز کے لیے یہ سب کچھ کیا، جائیں میں آپ کو اجازت دیتی ہوں، میرے پرسنل پلیٹ فارمز کے میں آپ کو جو ہے وہ لنکس دیتی ہوں، آپ جا کر دیکھیں کیا ڈاکٹر نبیہہ نے ایک بھی ایسی ویڈیو وہاں پوسٹ کی جس کا کوئی ایک بھی ڈالر آیا ہو. میرے جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں وہ مونیٹائز ہی نہیں ہیں. میں کبھی بھی ویوز کے لیے اور پیسوں کے لیے اس طرح کی گندگی نہیں کر سکتی. میں واقعی تنگ آ گئی تھی، پریشان ہو چکی تھی. مجھے اپنے شوہر سے کمٹمنٹ چاہیے تھی، مجھے گھر چاہیے تھا، مجھے حقوق چاہیے تھے. میرے شوہر میرے ساتھ اتنے برے نہیں تھے جتنا برا لوگ جو ہے وہ نے ان کے کانوں میں باتیں ڈال کر جو وہ بنا رہے تھے اور ہمارے درمیان میں لڑائیاں ہو رہی تھی. یہ مجھے لگتا ہے جب تک یہ لوگ بیچ میں سے نہیں نہ نکلیں گے تب تک مسئلہ حل نہیں ہوتا. لیکن کیونکہ سوشل میڈیا پہ بہت منفی باتیں چل رہی تھی، میں لڑکیوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو جائے لیکن وہ کبھی بھی اپنا سکون نہیں خرید سکتا پیسوں سے. آپ کا سکون صرف آپ کا گھر بسانے میں ہے. آپ کے شوہر کا جو سایہ ہے وہ آپ کے ساتھ ہے تو آپ بہادر ہے. میں آپ کو سچی بات بتاؤں، میں کچھ آپ کو جو اسکرین شاٹس دکھانا چاہتی ہوں جو مجھ سے لوگوں نے رابطہ کیا. مجھ سے کوئی 3-4 لوگوں نے رابطہ کیا اور انہوں نے مجھے باہر کے نمبر سے رابطہ کیا اور حارث کے بارے میں جس طرح وہ میرے ساتھ ڈسکس کرتے رہے کہ جی اس کے جو ہے وہ ہمارے پاس اسکرین شاٹ ہیں، یہ لڑکیوں سے باتیں کرتا ہے. جو میں نے ایک دو خود
बातें देखी थी वो कायम है, वो अपनी जगह पर है, लेकिन ये किसी ने मुझसे जो है वो राब्ता किया और मुझे बताया कि जी हारिस लड़कियों से बातें करता है। मैंने कहा जी अब जाहिर है मेरा तो पहले ही मामला जो है वो ये चल रहा था, और उन्होंने हारिस का नंबर ऊपर लिख के और मुझे जो है वो ये भेजनी शुरू की कि हम जी फलां लोग हैं और ये है, ये कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं, ये मेरे साथ जो है वो बातचीत चल रही है और ये उन्होंने इसके स्क्रीनशॉट्स भी मुझे भेजे हैं और साथ में जो है वो ये कहा भी है। अच्छा ये भी नहीं, इसके अलावा जो है वो एक वीडियो हारिस की एआई से बना के जनरेट करके मुझे भेजी गई। कोई भी बीवी ये कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि उसका शौहर इस हद तक जो है वो गिर जाए। मैंने और खासतौर पे मुदस्सिर भाई ने जो है वो जब इसकी इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि ये एआई जनरेटेड है। उसकी वजह ये है कि मैं जाहिर है कि मैं बीवी हूँ हारिस की, मैं बेहतर तौर पे जान सकती थी कि ये हारिस की का जिस्म लगाया गया या नहीं, वो वैसा नहीं था जिस तरीके से वो एआई वीडियो में था। वहां से मुझे एहसास हुआ कि लोग एक घर तुड़वाने के लिए कितनी ज्यादा कोशिशें कर रहे हैं। जहां इनके वालिदैन मेरे और हारिस के रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करते थे, वो अपनी जगह पे सच्ची बातें हैं। जहनी अजियत, चीजें, टॉर्चर, सामान बार फेंकना, ये सारे मसाइल अपनी जगह पर हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ से ये यकीन दहानी करवाई जा रही है कि वो मुझे एज अ बहू और वो हारिस मुझे एज अ शौहर जो है वो कबूल करेंगे और मेरी तमाम तर जरूरियात जिंदगी को जो है वो पूरा करेंगे, तो मैं जरूर एक मौका अपनी जिंदगी को देना चाहती हूँ, अपनी शादी को देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपने शौहर की कमिटमेंट ही चाहती हूँ। मुझे अपने शौहर का साथ चाहिए और मैं हर उस लड़की से कहूंगी जो खुला दायर करने कोर्ट तक जाती है, एक दफा ये जो आपका घर का रिश्ता है ना, ये मियाँ बीवी खुद नहीं तोड़ते। मैं पहले भी यही कहती रही और मैं आज भी यही कह रही हूं और मैं खुद इस चीज से गुजरी भी हूं कि मेरे घर को तोड़ने में भी थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस थी। एक औरत जो मुझसे भी राब्ते में थी, मेरी दोस्त बनी हुई थी और मेरे ससुराल वालों से भी सारी जो है वो वहां जाके मेरे हवाले से जो है वो गलत बातें करती थी और बताती थी कि इसकी इतनी शादियां हैं और मैं आपको इसका निकाहनामा निकलवा के दूंगी। उसने मेरी सास के कान भर भर के मेरी सास को मेरा दुश्मन बना दिया था और मुझे इस बात का पता नहीं था कि वो सोशल मीडिया पे ही बैठने वाली औरत है और वो मेरे घर में, मेरे ससुराल में जाके मेरे ही घर उजाड़ने की भरपूर कोशिश कर रही है। और मेरी सास और मेरे ससुर मुझसे मुतनफर होकर जो मुझ पर जो है वो जुल्म किया या जो भी किया वो उन्होंने लोगों की बातों में आके किया, और मैंने भी जो ये सब चीजें जो है वो की, जो मैंने अपनी आंखों से देखी उसकी मैं आज भी गारंटी देती हूँ। लेकिन जो मैंने नहीं देखी, जो चीजें ये मामलात हुए, मुझे लड़कियों की जो है वो चैट्स भेजी गई अपने शौहर के नंबर से, वो सब एआई जनरेटेड थी। मैं देखकर हैरान हो गई, परेशान हो गई कि ये मेरे साथ हुआ क्या है। ये लोग मेरे साथ ब्लेम गेम कर कैसे रहे हैं? ये कौन लोग हैं जो मेरा घर तोड़ने वाले हैं? इनमें सोशल मीडिया के यूट्यूबर्स हैं, मेरे शौहर के साथ बैठ के एक प्लेट में खाने वाले वो हैं जिन्होंने अपने घर बसाए हुए हैं, जिनकी दो दो बेटियां हैं, उन्हें शर्म से डूब मरना चाहिए। और अब मैं ये अलल ऐलान कह रही हूं कि अगर कोई सोशल मीडिया की जो है वो यूट्यूबर लड़की या लड़का मेरे शौहर या मुझे गलत तरीके से भड़काने की अगर तुम लोगों ने कोशिश की, क्योंकि मेरा तमाम तर चीजों पे प्रॉपर चेक एंड बैलेंस है और मैं रखूंगी और मैं रखती हूं और मैंने आगे भी रखना है, ये जहन में रखना। अगर तुमने मेरे शौहर को गलत मैसेजेस किए या किसी भी यूट्यूबर ने मेरे बारे में कोई गलत इंफॉर्मेशन या मेरे घर तोड़ने की कोशिश की, तो मैं तुम्हारे घर भी सलामत नहीं रहेंगे। मैं तुम्हारी असलियत लोगों के सामने ले आऊंगी। मैंने अभी तुम्हारे नाम नहीं बता रही, लेकिन अगर तुम लोगों ने मुझे मजबूर किया और मेरे शौहर का पीछा ना छोड़ा तो मैं तुम्हारे नाम भी जो है वो बता दूंगी। सोशल मीडिया इसकी बहुत बड़ी जड़ है। आपकी मेहरबानी कि आपने बरमला इस चीज का इजहार किया कि डॉक्टर साहिबा अपना घर ना तोड़ें, चीजों को, मामलात को जो है वो परखें, और आप उधर भी गए, उनसे भी आपने कमिटमेंट ली कि वो मुझे बकायदा जो है वो एक बीवी की हैसियत से जो है वो मोहब्बत और प्यार देंगे। तो मैं ये समझती हूँ कि फिर उसके बाद पीछे कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। लोग कह रहे हैं ये ड्रामा था, ये ड्रामा था, ये ड्रामा नहीं था। मेरी जिंदगी जो है वो भंवर में फंसी हुई थी, मैं तकलीफ और अजियत में हूँ, मैं पता नहीं कितनी मुश्किलों में हूँ। ये 5-6 दिन जो मेरे ये खुला और तलाक के, ये डिप्रेशन के जो है वो चले हैं, इसमें मैंने कितना कुछ सीख लिया आप नहीं जानते। आज के बाद मेरी तरफ से मेरी पर्सनल लाइफ, मेरे घरेलू मामलात, मेरे साथ जो भी हो, मैं सोशल मीडिया पे नहीं लाऊंगी। मैं इदारों का सहारा जरूर लूंगी अगर मेरे साथ कोई मिसहैप होता है, कहीं से आपको कुछ पता चलता है तो अलग बात है, लेकिन मुझे अपने शौहर पे और अपने ससुराल वालों पे इतना यकीन जो है वो हुआ है कि वो मुझे अगर अपना रहे हैं और वो ये चीज कह रहे हैं कि आइंदा इस तरह की चीजें जो है वो नहीं होंगी, तो मैं जो है वो एक मौका अपनी शादी को देना चाहती हूँ। बाकी तमाम तर जो इल्जामात हैं, जो चीजें हैं, उनकी मैं तरदीद कर चुकी हूँ कि हमें भड़काने वाले बीच में लोग भी बहुत ज्यादा थे। तो मैं बराए मेहरबानी लड़कियों को यही कहूंगी कि खुला की तरफ बहुत सोच समझ के जाएं, और जो खुला के केसेस इस वक्त रिपोर्ट हुए हैं
हैं, अपने शोहरों से खुद बात करो। क्या पता शोहर के घर वाले ना चाहते हो तुम्हारा घर ना बसे, क्या पता शोहर के दोस्त ना चाहते हो तुम्हारा घर ना बसे, क्या पता तुम्हारा शोहर उनके हाथों की कठपुतली बना हुआ हो। उसको समझाओ, उससे प्यार से बात करो, दोनों एक दूसरे को टाइम दो। इस खुला के आगे मत जाओ, बच्चों की जिंदगी बर्बाद होती है। मैंने अपने बच्चे को भी हारिस के बगैर जिस तरह से उदास देखा, उसने खाना नहीं खाया, वो जो भी सिचुएशन थी उसकी मैं यहाँ पे तफसीलन बयान नहीं करना चाहती। तो मैं ये समझती हूँ कि एक बाप की ज़रूरत बच्चे को हमेशा से होती है। वो उसका सगा बाप नहीं है, लेकिन उसने हमेशा उसको अपने बच्चों से ज़्यादा बढ़कर जो है वो प्यार दिया है। आप हमें दुआ दें कि हमारा घर बसे और हम खुशी से ज़िंदगी गुजारें। और अगर मेरा शौहर मुझे और मज़ीद कमिटमेंट जो है वो मीडिया के सामने देता है, जो इल्ज़ामात मुझ पे लगाए गए हैं, जो मेरी उम्र के हवाले से गलत बातें की गई हैं, जो मेरे ख़ानदान के हवाले से गलत बातें की गई हैं, ये मेरे शौहर से भी मेरी रिक्वायरमेंट है और मेरी रिक्वेस्ट है कि वो भी इन चीज़ों को आकर जो है वो मीडिया पर क्लियर करें। क्योंकि हमने एक दूसरे पर जो भी इल्ज़ामात आयद किए या जो भी मामलात किए, देखें वो किसी हद तक जो है वो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस का नतीजा भी है, और किसी हद तक मैं वो सब चीजें बर्दाश्त भी कर रही थी। झूठ कुछ नहीं था, सच ही था। लेकिन सिर्फ सूरत हाल ये है कि इस वक्त मेरा शौहर जो है, जो अपनी की गई बातें हैं जिनसे मेरे खानदान की दिलआज़ारी हो रही है और मेरा खानदान जो है वो इस वक्त तकलीफ में है, वो भी आके इसकी वजाहत करें। बाकी जो मेरा भाई है, उसने जिसके घर में मैं रह रही थी, उसने साफ और वाज़ेह कह दिया कि मैं तुम्हें और हारिस को बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुमने हमारी जो है वो सोशल मीडिया पे बहुत बेइज्जती करवाई है, तो मैं तुम्हारे साथ जो है ना मैं तुम्हें रखूंगा, और अपने शौहर को कहो कि वो तुम्हें खुद लेके जाए। तो अब मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगी भाई कि आपकी हारिस से मुलाकात होती है तो उसे साफ मेरा मैसेज पहुंचा दीजिएगा कि मेरा अब कोई घर नहीं है, और ना मुझे मेरा भाई रखने के लिए तैयार है, ना कोई रखने के लिए तैयार है। और अगर मेरे ससुराल वाले भी मुझे रखने के लिए तैयार नहीं है तो हारिस और मैं अलग घर में रह सकते हैं। अब कोशिश ये है कि पॉजिटिवली चीज़ों को पॉजिटिवली मुस्बत अंदाज से लेके चल रहे हैं। हारिस कोकर उनकी फैमिली आपको ऑन करती है, और दूसरी बात ये कि कोशिश करेंगे मीडिया से मामला तब बंद कमरे के अंदर चले जाएं, और खुला जो भी लड़की या तलाक जो भी लेती है, हमें पॉजिटिव रोल, मुस्बत रोल अदा करना चाहिए। एक लाइन में सिंगल मैसेज है, जो भी लड़कियों ने जिन्होंने अभी खुला फाइल की हुई है या जिनकी डिवोर्स का मामला चल रहा है, एक बार अपने खावन से डायरेक्ट रब्ता करके देखें। और खावन के लिए एक मैसेज है, एक बार डायरेक्ट अपनी बीवी को मैसेज करके देख लें, ऐसे घर चल जाएंगे। 2 से 3 खुला मैंने आज विड्रा करवाई हैं। सिर्फ मसला ये था जी मेरे डॉक्टर साहब के लिए कि डायरेक्ट जब कॉन्टैक्ट हो जाता है तो दरमियान के लोगों की छुट्टी हो जाती है, तो घर बस जाते हैं। ये एक नेकी का काम है मेरे ख्याल में। हमें हर और मैं एक और बात बता दूं, ये जो सोशल मीडिया पे बैठ के बकवास कर रही है ना औरतें और आदमी, इनको मैं लास्ट वार्निंग दे रही हूँ कि अब मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर दें। ये तमाशा जो है वो आप बंद कर दें, क्योंकि ये तमाशा आप लोगों ने ही ज्यादा लगाया। मैंने जो बातें की हैं मैं उस पर आज भी कायम हूँ, लेकिन मैं फिर आप लोगों को जो है वो लास्ट वार्निंग दे रही हूँ कि ये तमाशे ना लगाएं। और जो खुला अप्लाई करने के लिए लड़कियां जो अदालत तक पहुंची, अपनी खुला को वापस लो, अपना घर बसाओ, खुला की तरफ नहीं जाना। अगर तुम्हारा शौहर किसी वजह से जो है वो तुम्हें तलाक दे देता है तो ये और बात है, लेकिन मैं मर्दों को भी कहूंगी कि खुदा के लिए अपने घर ना जो है वो तोड़ें, तलाक ना दें औरत को, अपने बीवी बच्चों की जिंदगी का ख्याल करें। सारी जिंदगी आप अपने बहन भाइयों का, अपने माँ बाप का करते आए हैं, एक दफा उस बीवी का भी ख्याल कर ले जो बीवी आपके निकाह में है, जिसका अजर आपको अल्लाह ने देना है। मर्दों से मेरी गुजारिश है कि भाई मैंने अपना घर टूटने के मामले में बहुत कुछ सीखा है। इंसान सारी जिंदगी के लिए टूट जाता है। मेरे लिए 5 दिन किस कर्ब और किस अजियत से मैं गुजरी हूं वो मुझे पता है। जो लोग मुझे भड़का रहे थे वही लोग मेरे शौहर को भड़का रहे थे, जो लोग मेरे शौहर को मैसेज कर रहे थे वही लोग मुझे मैसेज कर रहे थे। इतने खबीस और शैतान किस्म के ये लोग हैं कि हमारा पैचअप कराने की बजाय और बीच में लड़ाई करवा के कहते हैं डॉक्टर साहब तोड़ दें, फटाफट खुला लें। उधर से उसको कह रहे थे फटाफट तलाक दो, पेपर दो, इस औरत को जो है वो फारिग करो। अल्लाह करे कि आप लोगों को अपनी जिंदगी में कभी ये दिन ना देखना पड़े। मेरी बहनों, खुला नहीं लेनी, खुला तक नहीं जाना, मेरे वाली गलती आपने नहीं करनी। मैंने खुला वापस ले ली है। मुझे उम्मीद है कि मेरी जितनी बहनें इस टाइम खुला दायर कर चुकी हैं, वापस ले लो, शौहर को समझाओ, उसे ठीक करने की कोशिश करो, शायद घर बच जाए। और अगर ना बसे तो मीडिया तक आज के बाद मेरा पर्सनल मैटर नहीं आएगा। मैं जो अपना साइकोलॉजिकली जो मैं काम कर रही हूँ, जो एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं काम कर रही हूँ और साइकोलॉजिकली मैं लोगों को जो है वो डील करती हूँ, वो मैं करती रहूंगी अल्हम्दुलिल्लाह। और उसमें मेरी आपको वीडियोस भी मिलती रहेंगी, लेकिन मेरी पर्सनल लाइफ के हवाले से अब आपको कोई वीडियो नहीं मिलेगी। शुक्रिया।